Hello students, I'm your Safik sir. Okay, so today in the last class we have talked about series and parallel combination of capacitors. In today's class we'll be discussing about some questions, some circuits based on series and parallel connection of capacitors, and that one I have given you as an assignment. Okay, so some very simple circuits. Let us work with that. Very simple circuits. In the first case, I have considered three capacitors. All these three capacitors are identical. C. They are in series. So here C equivalent will become directly capacitance divided by number. Okay, last class I have told you. If like this, there are n capacitors, then C divided by n. 4 capacitors, C divided by 4. 3 capacitors, C divided by 3. 2 capacitors, C divided by 2. Okay. Otherwise you can see 1 by C equivalent is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C. That is 3 by C. Or from here you'll get C equivalent is equal to C by 3. This is in detail. And the second case, this is one capacitor, the other two capacitors C and C. These two capacitors C and C. So very simple, these two are connected in parallel, then in series with this one. So here the equivalent circuit will become between A and B. This is C, these two are in parallel. C by C, how much will become? Twice C. This is B, so twice C and C are in series. So equivalent will become how much? In series, equivalent is C1 into C2 divided by C1 plus C2. So this will become twice C divided by 3. In the third case, this was the third problem. C. Okay, these two are in series. First these two are in series, then parallel with the third. These two are in series. Okay, like this C in series, C by 2. C and C in series, sorry, C 3 in series, C by 3. Here there is two capacitors, C and C in series, C by 2. So this circuit will become something like this. On the top there is C by 2 and below there is the capacitance C. So between A and B, so equivalent capacitance will become how much? C equivalent. These two are in parallel. Parallel means equivalent is the sum of them. C plus C by 2. How much is that? 3C by 2. Okay. So try to remember this particular tree configuration, because this is going to be the building block of other complicated capacitor networks. Okay. Coming to the fourth problem. The fourth problem was like this: C and C. Something similar to the first one. C and C connected, appears to be here it is connected in series, but in 4 what is the difference? This was connected like that and this is connected like that. These two connections we have. Because of this connection, what will happen? Let me call this point as X, this point as Y. We have to find equivalent capacitance between A and B. Okay, so you remember one thing, A is directly connected to Y. So A and Y basically are representing same point. Between A and Y there is no capacitance. So you can call these 2 points to be same because they are simply connected by wire. Similarly, X and B, they are just joined by wire. Okay, in between there is no capacitance, or between these 2 points there is no potential drop. So this picture, how we can write it, redraw it, between A and X is the first capacitor. See what I'm doing, between A and X, this is the first capacitor, between A and X, first capacitor. Second capacitor is what? Between X and Y. Second capacitor is between X and Y, and Y is connected with A, so I am joining Y and A. Okay. The third capacitor is between Y and B. The third capacitor is between Y and B, and B is joined with
X. B is joined with X. So between A and B, all three are connected in parallel. So C equivalent will become C in parallel 3C. The fourth circuit. Two capacitors there, one capacitor here, one capacitor here. This is the one. Between A and B, we have to find equivalent circuit. And the situations, how they are connected. So if I call this particular point as D, then you see between A and B, no capacitance. So point A and point D are same point. That means this particular circuit I can modify it like this also. This circuit I can modify like this. D, instead of connecting it here, I can connect D here also. Because D, okay, between from here to here there is no capacitance. Whether I connect it here, or connect it here, it is all the same. If I do the connection here, then you will see these two are in parallel. Then in series with third one. Then in parallel with fourth one. So here will become C and C in parallel, equivalent will become 2IC. This is the next C is there, and below there is another C. Now these two are in series, equivalent will become how much? C and C in series, 2IC divided by 3. How come? C1 into C2 divided by C1 plus C2. Do it. C1 into C2 divided by C1 plus C2. This will become 2IC by, this will become 2IC by 3. Do it by yourself. Now between A and B, 2IC by 3. 2IC by 3 and C are in parallel. Equivalent will become what? The sum of them. So C equivalent is what? C plus 2IC by 3. That will become 5C by 3. The next is what? This is something we call it as Wheatstone bridge. Something that we are going to learn in current electricity. Not very sure if you have learned in class 10. Okay, this particular network. Let me call this point as X, this point is Y. So in the circuit, if you see carefully, this way there are two capacitances, this way there are two capacitances. This particular part and this particular part are completely identical. That means if you take the circuit and rotate it by 180 degree, there will be no difference in the previous circuit and the second circuit. There will be no difference if you rotate it by 180 degree. That means this particular part and this particular side is completely identical. If these two sides are completely identical, then point X and point Y are completely identical points. That means the potential at X and potential at Y is going to be the same. If these two points are having same potential, then this capacitor can be neglected, because through this capacitor there will be no flow of charge. यानी इस कैपेसिटर में कोई चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा. ओके, सो ये कैपेसिटर रहे या ना रहे, इससे सर्किट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. ओके, देयर विल बी नो डिफरेंस इन द सर्किट वेदर दिस कैपेसिटर इज देयर और नॉट. ओके, क्योंकि इसके बीच में से कोई चार्ज फ्लो होगा ही नहीं. जो चार्ज इसमें आएगा सीधा चला जाएगा, जो चार्ज इसमें आएगा वो सीधा चला जाएगा यहाँ पर. इसका मतलब यहाँ पर चार्ज हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. सो वो वाला सर्किट और ये वाला सर्किट बिल्कुल सेम है, यानी बीच वाला रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को हमने नेग्लेक्ट कर दिया. अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो क्या हुआ? दिस टू आर इन सीरीज, दिस टू आर इन series. If they are in series, equivalent will become C by 2. These two are in series, equivalent will become C by 2. C by 2, C by 2 in parallel, equivalent will become C. C by 2 plus C by 2 will become how much equal to C. So that is why this particular circuit, or if you take the circuit like this, we'll be doing details of Wheatstone bridge later. ये वाला circuit same circuit है, or it can be, this circuit can be drawn as like this also. This circuit is also same as
ऑल दिस थ्री सर्किट्स आर सेम, ये तीनों सर्किट सेम है। अगर मैं इसको ए बी कहूं, एक्स वाई, इसको मैंने एक्स कहा, इसको मैंने वाई कहा, यानी इस पॉइंट को मैं वाई कहता हूं, ये पॉइंट क्या है, एक्स है। ये वाला सर्किट यही है। थोड़ा ध्यान का साथ देखो, ये कैपेसिटर बिटवीन एक्स एंड वाई है ना, ए एन एक्स है, ये कैपेसिटर बिटवीन ए एंड एक्स है, बिटवीन ए एंड एक्स वन कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटर बिटवीन सॉरी, this capacitor between a and y, so this capacitor is between a and y. This capacitor between a and x, the upper capacitor is between a and x. ये बीच वाला कैपेसिटर between x and y, बीच वाला कैपेसिटर between x and y. ये साइड में देखो x and b के बीच में कैपेसिटर है, x and b के बीच में कैपेसिटर है, b and y के बीच में कैपेसिटर है, b की y के बीच में कैपेसिटर है। तो ये तीनों सर्किट का सॉल्यूशन सेम है। How much is that equal to C if all are having same capacitances? ओके, बाद में हम देखेंगे इसमें अलग अलग वैल्यू लेके हम लोग करेंगे। ओके, फिलहाल इसके लिए इसको याद रखो। तो तीनों में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, C। तो अभी इसके लिए ये वाला सर्किट कर दो। इसमें भी हमें निकालना है what is the equivalent capacitance between A and B, बाकी सब C है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, इस सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। अब अच्छी तरह से देखोगे, अपर वाला पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, अगर ध्यान का साथ देखोगे। कैसे, देखो मॉडिफाई कर रहा हूं मैं सर्किट। नीचे क्या था, C था, बिटवीन A and B, इस पॉइंट को A कह रहा हूं, इस पॉइंट को B कह रहा हूं। अब देखो A particular part, यहां से one capacitor, another capacitor, from A there are two capacitors, फिर दोनों के बीच में एक कैपेसिटर, दोनों के बीच में एक ये वाला कैपेसिटर, फिर यहां से B तक और यहां से B तक another कैपेसिटर, यहां से B तक और यहां से B तक। ओके, ये वाला ओके, दिस पर्टिकुलर पार्ट इज द अपर पार्ट। नीचे कैपेसिटर है, नीचे ये कैपेसिटर है। सो ये वाला पार्ट तुम्हारा जो ह्यूस्टन ब्रिज बोल रहा था वो हो गया। यहां पर क्या करें, इसका नेग्लेक्ट करें। ओके, C and C in parallel, sorry, C and C in series, C by 2, C and C in series, C by 2, C by 2, C by 2 in parallel, C and C in parallel, twice C। तो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसका कैपेसिटेंस है C, और नीचे वाला पार्ट इसका कैपेसिटेंस भी तुम्हारा क्या है, C है। सो अपर पार्ट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट, द कैपेसिटेंस ऑफ द अपर पार्ट इज C, below also there is a C, these two C are in parallel, so C equivalent is nothing but twice C. Exactly on a similar manner, if we take this particular capacitance circuit, if we take this circuit, if we take this circuit, all capacitances are C, what is the equivalent capacitance between A and B? इस सर्किट तो हम क्या करेंगे, होल्ड B, इसमें देखो B को पकड़ो, उसको बाहर लेके आ जाओ, B को पकड़ो और बाहर लेके आ जाओ। ओके, इसको बाहर लेके आ जाओ तो क्या बनेगा, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज X and Y। ओके, ये पॉइंट A है, पॉइंट A अपना जगह पर रह गया, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट Y है, Y और A के बीच में कैपेसिटेंस है, ये Y है, ये X है, ये X है, X और A के बीच में कैपेसिटेंस है, X और Y के बीच में कैपेसिटेंस है। लेट मी कॉल दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज Z। Z जब B को मैं बाहर लेके जाऊंगा तो Z भी बाहर निकल जाएगा, Z यहां पर आ गया। बिटवीन Z एंड X देयर इज अ कैपेसिटेंस, ये Z एंड X के बीच में, बिटवीन Z एंड Y अनदर कैपेसिटेंस, बिटवीन Z एंड Y अनदर कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस है बिटवीन Z एंड B, Z और B के बीच में कैपेसिटेंस है। हो गया, तो ये वाला हो गया तुम्हारा ह्यूस्टन ब्रिज। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, C होगा, C एंड C इन सीरीज। सो कितना बनेगा, ये B है, this point is Z, between B and Z there is C, between Z and A this is a Wheatstone bridge, equivalent is C.
So between A and B there are two capacitance C and C in series. Equivalent is C by 2. Equivalent is C by 2. उसका बाद ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट okay, this is 2 microfarad. Top one is, how much is that? 1 microfarad. This is 1 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad, and this is 2 microfarad. Between A and B we have to find equivalent capacitance. तो ये भी एक सिंपल सर्किट है, आसानी से देखो. If I call this particular point and this particular point and this part, all these three are having same potential. So इसको तुम यहाँ ज्वाइन करो या इसमें लाके ज्वाइन करो तो एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस है नहीं. अगर होता तो फर्क पड़ता. तो इसमें से इसको लाके यहाँ ज्वाइन कर दो, इस पार्टिकुलर वायर को लाके यहाँ ज्वाइन कर दो, इस पार्टिकुलर वायर को लाके यहाँ ज्वाइन कर दो. क्या देखने को मिलेगा? These two are in parallel, these two are in parallel, then they will be in series, then all will be in parallel. तो मैं यहाँ से मॉडिफाई करता हूँ. 1 and 2 in parallel equivalent is 3. 4 and 2 in parallel equivalent is 6. तो बीच में आ गया तुम्हारा 3 and 6. Above there is 1 and below there is how much? 2 microfarad. Clear? This is between A and B. 3 and 6 in series. इन दोनों का equivalent कितना होगा? 3 into 6 divided by 3 plus 6. याद रखो, this is going to be your 2. इसको याद रख लो. 3 and 6 in series, equivalent is 2. 3 and 6 are in series, capacitance equivalent is 2. याद कर लो. अब बीच वाला कितना हो गया? 2. ऊपर कितना है? 1. बीच में कितना है? 2. नीचे कितना है? 2. So सब किसमें? पैरेलल है. तो कितना होगा? 2 plus 2, 4 plus 1, 5. C equivalent कितना है? 5 microfarad. फाइव माइक्रोफैराड. इसमें और एक पॉइंट है, ये वाला प्रॉब्लम बिटवीन ए एंड बी. 1 2 3 between A and B. 1 2 and 3. ये वाला सर्किट. व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी? घुमा फिरे के प्रॉब्लम वही है. अब इसको अच्छी तरह से देखोगे, यहाँ पर एक बेंडिंग है. बेंडिंग है मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर दे आर नॉट टचिंग, दे आर फ्री. तो मैं क्या करूंगा, इस पार्टिकुलर पार्ट को मैं लेके ये साइड में लेके जाऊंगा, इसको लेके पकड़ के इधर लेके जाऊंगा. तो इधर लेके जाने से देखने में कैसा होगा? सीट केयरफुली, ये देखने में कैसा लगेगा? इसी पॉइंट पर था तो मैंने इसको ये साइड में लेके गया. ठीक है, थोड़ा इसको इस तरह से घुमा दो, इस तरह से घुमा दो. क्या बना? ह्यूस्टन ब्रिज बना? बना क्या नहीं बना ह्यूस्टन ब्रिज? ये ह्यूस्टन ब्रिज है, थर्ड वाला सर्किट ह्यूस्टन ब्रिज का. सो सी इक्विवेलेंट कितना होगा? नथिंग बट इक्वल टू सी. तो इसमें और एक प्रॉब्लम है, जैसे ये वाला प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को लेके थोड़ा कंफ्यूजन है. बिटवीन ए एंड बी व्हाट इज द कैपेसिटेंस?
बिटवीन ए एंड बी व्हाट इज द कैपेसिटेंस। तो हम थोड़ा कंफ्यूज है, ये इसका साथ सीरीज में है ना इसका साथ पैरेलल में है ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा इसमें। ये देखो बिल्कुल रेजिस्टेंस फ्री पाथ है, इसमें कोई कैपेसिटेंस, सॉरी कैपेसिटेंस फ्री पाथ, इसमें कोई कैपेसिटेंस है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसमें। तो ये बिल्कुल दिस टू पॉइंट्स आर डायरेक्टली जॉइंड, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये ए एंड बी आर शॉर्टेड, ए और बी को क्या किया गया? शॉर्ट किया गया। तो ए और बी के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं है, यानी ए और बी का बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0 है। तो यहां पर कुछ लगाओगे तो डायरेक्ट यहां से फ्लो के निकल जाएगा। ओके, तो इसमें तुम्हारा ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? तो ए और बी के बीच में कोई भी कैपेसिटेंस नहीं है। मैं इस पॉइंट को ए कहूं या इस पॉइंट को ए कहूं, एक ही बात है। मैं इस पॉइंट को बी कहूं या इस पॉइंट को बी कहूं, एक ही बात है। यानी मैं दोनों को एक ही पॉइंट कह सकता हूं, यही ए और बी है। तो ए बी आर द सेम पॉइंट्स, तो सेम पॉइंट्स के बीच में कोई भी कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0 होगा। तो इस सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा? 0 होगा। एग्जैक्टली सिमिलर सर्किट ये भी है, एग्जैक्टली सिमिलर सर्किट ये वाला भी है। ये भी तुम्हारा होमवर्क में दिया हुआ है। ये पॉइंट ए है, हमने एक इस तरह से किया। ओके, इसमें कैपेसिटर है, इसमें भी कैपेसिटर है, कैपेसिटर है। पहले हम सर्किट को समझते हैं, कैलकुलेशन वाला झमेला हम बाद में लेंगे, इसीलिए सारा कैपेसिटर्स को मैंने सी डाल दिया। We have to find equivalent capacitance between A and B. A और B के बीच में equivalent capacitance निकालना है। ओके, तो अच्छी तरह से देखोगे ये पूरा का पूरा जो रिंग है ना, ये रिंग का हर पॉइंट सेम पोटेंशियल में है। बिकॉज रिंग ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट के बीच में कोई तुम्हारा कैपेसिटेंस में नहीं है, बिटवीन दिस टू पॉइंट कैपेसिटेंस नहीं है। अगर मैं इसको x और y और z कहूँ तो a, x, y, z ये चारों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो ये चारों पॉइंट को हम कैसे ले सकते हैं? एक साइड में तुम्हारा पॉइंट B है, ये साइड में तुम्हारा पॉइंट B है। B और A के बीच में एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटेंस है तुम्हारा B और A के बीच में। दूसरा कैपेसिटेंस है B और X के बीच में, दूसरा कैपेसिटेंस है B और X, बट X इज जॉइंट टू A, बट X इज जॉइंट टू A, यानी X और A सेम पॉइंट है। दूसरा second capacitor is connected, third capacitor is connected between B and Y, between B and Y, between B and Y, but Y is again connected with A and X, Y is again connected with A and X. Fourth capacitor is between B and Z, but Z is again connected with A, B and Z, but Z is also connected with AX, Y. So all these 4 capacitors has turned out to be in parallel. So C equivalent is nothing but 4C. Another one is there. This is not so difficult. इस तरह से किया गया इसको, बिटवीन A and B इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, बिटवीन A and B। ये वाला प्रॉब्लम सिंपल है, बिटवीन A and B। हम जितना करेंगे उतना आदत पड़ जाएगा, विल गेट हैबिचुएटेड। जैसे यहाँ पर देखो बिटवीन A and B, A से देखेंगे बिटवीन A and B, तो A से 2 आर्म है, तो यहाँ से भी 2 आर्म गया है, पता नहीं। लेकिन एक बात श्योर है, ये दोनों कैपेसिटर, इसमें से जितना चार्ज आएगा उससे उतना ही चार्ज पास होगा। ओके, ये दोनों बिल्कुल सीरीज में है, ये दोनों बिल्कुल सीरीज में है। तो इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। C and C in series equivalent is C/2। बाकी सब अपना जगह पर है, बाकी सबको अपना जगह पर रखो। C and C in series equivalent is C/2। ये आर्म में आ गया तुम्हारा C/2, बाकी सब C and C है। दिस इज A, दिस इज B। अब ये दोनों पैरेलल में होगा, C/2 and C are in पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कितना होगा? बाकी सबको अपना जगह पर रखो। C and C/2 ऐड कर दो, दोनों को पैरेलल में है, जस्ट ऐड होगा। C plus C/2 3C/2, A and B 3C/2 C। अब देखो A और B के बीच में, ये दोनों सीरीज में है और इसका साथ पैरेलल में है। बाकी कर लो तुम खुद, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को ऐड करो। सॉरी, इसका रेसिप्रोकल ऐड होगा, इन दोनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा? इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? C1 into C2
डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये बन गया तुम्हारा 5C बाई 2, 3C इंटू C बाई 2, 2 कैंसिल, वन ऑफ द C कैंसिल, 3C बाई 5, 3C बाई 5, इसमें कितना आ गया 3C बाई 5, 3C बाई 5 एंड C आर इन, ये किसका इक्विवेलेंट है, इन दोनों का, इन दोनों का इक्विवेलेंट, इन दोनों सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट ये है। अब 3C बाई 5 एंड C आर इन पैरेलल, सो फाइनल इक्विवेलेंट कितना होगा, इन दोनों का सम C प्लस 3C बाई 5, दैट इज 8C बाई 5। और कुछ बाकी रह गया इसमें, लास्ट वाला प्रॉब्लम कर देता हूं, लास्ट वाला प्रॉब्लम कर देता हूं। सिंपल प्रॉब्लम है, ये पीछे की तरफ है, a 3-dimensional figure I am trying to draw, याद रहे ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, ओके, ये 3-dimensional फिगर है, जैसे पिरामिड शेप का है, ओके। सो इसमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, इन दोनों का भी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ओके, इन दोनों का भी इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे बिटवीन ए एंड बी। तो इसमें थोड़ा ध्यान दो, इसमें थोड़ा ध्यान दो, ए टू बी, अगर मैं किसी बैटरी कनेक्ट करूं, अगर चार्ज फ्लो होगा यहां से, तो इसमें से 2-3 आर्म है थ्रू व्हिच चार्ज विल फ्लो, वन डायरेक्टली विल गो फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाला आर्म है, सेकेंड वाला आर्म इट विल गो अप देन कम डाउन, ये थर्ड वाला है, दिस विल गो एंड दिस वे। अब पहला आर्म को भूल जाओ, सीधा सेकेंड एंड थर्ड आर्म, सेकेंड आर्म जो है और थर्ड आर्म जो है ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, पहले इसको समझने के लिए कोशिश करो, सी सी, सिमिलर यहां पर सी है और सी है, ओके। इसीलिए अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये मिडिल पॉइंट है, अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो ये मिडिल पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को x कहूं और इस पॉइंट को y कहूं, x एंड y आर आइडेंटिकल पॉइंट्स, क्योंकि ये दोनों रास्ता बिल्कुल आइडेंटिकल है और ये दोनों पॉइंट इसलिए बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। अगर ये दोनों पॉइंट बिल्कुल आइडेंटिकल है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस साइड से जाओगे मिडिल पॉइंट xx, ये साइड से जाओगे मिडिल पॉइंट xx, तो दोनों पॉइंट आइडेंटिकल है, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, अगर पोटेंशियल सेम है तो ना x से y की तरफ चार्ज फ्लो होगा, ना y से x की तरफ चार्ज फ्लो होगा, यानी along this path no charge will flow, मतलब इस कैपेसिटर में कोई चार्ज आएगा ही नहीं, कोई एनर्जी आएगा ही नहीं। तो अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मॉडिफिकेशंस नहीं आएगा, चार्ज पहले जैसा था बाद में भी वैसे रहेगा, ओके। तो अगर मैं ऐसे करूं तो मेरा सर्किट बन जाता है नीचे से सी एंड सी इन सीरीज डायरेक्टली, क्योंकि इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया, सी एंड सी इन सीरीज। सो ये आर्म में टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, C/2, नीचे वाला आर्म में कैपेसिटेंस कितना होगा टोटल, C/2, ये वाला आर्म में कितना होगा, सी एंड सी इन सीरीज, इक्विवेलेंट कितना होगा इन दोनों के पॉइंट में, C/2, और बिटवीन ए एंड बी डायरेक्टली क्या है, C है। अब अच्छी तरह से देखोगे, मैं ये इसको लेकर नीचे की तरफ लेके आता हूं, इसको पकड़ के नीचे की तरफ लेके आता हूं, देखने में कैसे होगा, ये साइड में तुम्हारा C/2, बीच में हो गया तुम्हारा C, और ये पार्ट में कितना हो गया तुम्हारा, ये C/2, बिटवीन A एंड B। सो इक्विवेलेंट कितना है, C/2 प्लस C/2, C एंड C, हाउ मच इज इक्विवेलेंट, ट्वाइस C, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार, ओके। इसके ऊपर हम और भी सर्किट डिस्कस करेंगे
after completing some other parts. Okay, till then, see you.